Okay. स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है? यस, लेट्स स्टार्ट. So the next property is differentiation of a signal. The next property is suppose we are interested in yt, or I should say differentiation of a signal. The next property is differentiation of a signal. So what we want? We want yt, which is equivalent to d by dt of xt. So this is our idea for the differentiation of a signal. और मैंने कल क्या बताया आपको कि how to draw differentiation. Things are very simple. To draw a differentiation of a signal, we need to draw the slope, है ना? देखा हमने कि differentiation means just draw slope. Because अगर suppose किसी लाइन का इक्वेशन हुआ y equal to let's say 2t plus 3, and this is also let's say x equal to, so what I can say, dx divided by dt is equivalent to 2, and 2 किसके इक्वल है? स्लोप के इक्वल है. तो आपको केवल स्लोप ड्रॉ करना है. बट this definition is valid only for the कंटिन्यूअस फंक्शन. जो हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है उसके लिए तो ये बात करेक्ट बैठती है. यहाँ कोई परेशानी नहीं है. सपोज यू आर हैविंग दिस सिग्नल, लेट्स से वी आर हैविंग दिस सिग्नल. We are having this signal. The signal is like this. Suppose you are having this signal. This is 0. This is, let's say,
t by 4. Let's say this is t. This is 3t by 4 and this is t. Let's say this is one signal x of t. This value is, let's say, 1. And let's say this value is -1. मुझे इस सिग्नल का डिफरेंशिएशन ड्रॉ करना है, तो थिंग्स आर वेरी सिंपल फॉर दिस सिग्नल. What I can say, I will start from this point. Okay. Then this is dxt divided by dt, and this is time t. So what I can say, you can just draw the slope of this line. What is slope of the line? Slope of the line is, you can say, tan theta, or very simple definition is y2 minus y1 divided by x2 minus x1. In our case, x of t2 minus x of t1 divided by t2 minus t1. So 1 minus 0 divided by t by 4. ये हो जाएगा कितना? 4 by t, है ना? 1 minus 0 is y2 minus y1 divided by x2 minus x1 is t by 4. तो 4 by t. इसका स्लोप कितना हो जाएगा? -1 divided by 3t by 4 minus t by 4. It's a 2t by 4, t by 2. So this is minus 4 by t. This is minus of 4 by t. And what will be the slope of this equation line? So it's a 0 minus -1 divided by t minus 3t by 4. So this is 4 by t. Just draw this 4 by t. So you can say this will be the 4 by t. अगला कितना है? -4 by t. So this will be minus of 4 by t. कितना है? 4 by t. और ये जो ड्रॉ किया है हमने, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ अ सिग्नल xt. आपको ये समझ में आया? इज इट क्लियर? व्हाट आई एम ड्राइंग हियर, what I am drawing here is d by dt of xt. तो मैंने आपको ये बोला कि जब तक आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है तब तक कोई परेशानी नहीं है ना? जब तक फंक्शन कंटिन्यूअस है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन द कंटिन्यूअस फंक्शन. कंटिन्यूअस फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये क्लियर है आपको? हाँ जी, क्या क्लियर है? एक बार बता दें फिर हम आगे बढ़ें. यस, चलो आगे देखते हैं. बट देयर इज अ प्रॉब्लम इन द डिसकंटिन्यूटी, और उसको कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखते हैं. देयर इज अ प्रॉब्लम इन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन. जरा देखते हैं. लेट्स से हाउ टू डील विद डिसकंटिन्यूटी, because function is not differentiable at discontinuity. Suppose I have this function.
I have this function. This is t, and vertical axis represents xt, and function looks like this. This plus this value is, let's say, a. This value is t. And we are interested in what? We are interested in the derivative of this function. So we are interested in d by dt of xt. एक बार try करें. Why this function is special? Because the left hand limit is not equivalent to right hand limit. The left hand limit for this function है ना, x of t equal to t minus is not equal to x of t at t प्लस. ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं है. t प्लस पे जीरो हो जा रहा है और t माइनस पे ये कैसा, दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट t इक्वल टू t. इस पॉइंट पे कैसा है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है. तो इस डिसकंटिन्यूटी को कैसे हैंडल करेंगे, जरा एक बार लिख के बताएं. करें, आप इसको सॉल्व करें, फंक्शन को सॉल्व करें. ड्रॉ दिस, क्या करेंगे देखें जरा, कि सपोज वी आर हैविंग दिस. दिस इज आवर फंक्शन. इस पार्ट के लिए तो स्लोप कितना होगा इसका, a बाई टी इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, है ना. तो 0 टू t बाय तक कितना ड्रॉ कर दो आप, a बाई टी ड्रॉ कर दो. तो यू कैन से ऑन वर्टिकल एक्सिस वी आर ड्रॉइंग d by dt of xt, and this is t. So what I can say, we can draw t here. ठीक है. अब क्या करें कि जिस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है उस पॉइंट पे इंपल्स बनेगा. तो इंपल्स की हाइट कितनी होगी, जरा ये देखें कि फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट. फाइनल पॉइंट कितना है इसका, 0. इनिशियल पॉइंट कितना है, a. तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट क्या बना दें आप, एक इंपल्स बना दे. तो फाइनल पॉइंट था 0, इनिशियल पॉइंट है a, ये कितना हो जाएगा, माइनस a. तो हियर यू विल ड्रॉ अ इंपल्स ऑफ, here you will draw one impulse. Wait, here you will draw one impulse. और impulse का height कितना लेंगे, you can say the height of impulse is
ठीक है, एंड दिस वैल्यू इज व्हाट, a बाई टी, और इस इंपल्स का हाइट कितना है, माइनस ए डेल टी। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्या किया जाए कि इसका क्या किया जाए कि इसका डिफरेंशिएशन इतना आ जाए, है ना, और इसी फंक्शन का आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको सेम फंक्शन मिल जाएगा, है ना। इफ आई इंटीग्रेट दिस, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन ड्रॉ करता हूं तो क्या बोलना पड़ेगा, सपोज आई वांट टू ड्रॉ इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन, सपोज आई वांट टू ड्रॉ द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन, तो आप क्या बोलेंगे इंटीग्रेशन के लिए, कि सपोज यू वांट टू ड्रॉ इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन, तो इंटीग्रेशन के लिए प्रोजेक्शन लें आप, तो प्रोजेक्शन फॉर दिस पॉइंट, एक कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कितना होगा, लाइन, और लाइन कितनी होगी, इस पॉइंट तक का एरिया देख लें आप, कितना है, a बाई टी इज हाइट एंड वन टी इज विड्थ, तो कितना हो जाएगा a, सो कैन आई से आई हैव दिस, इस पॉइंट तक का एरिया आया है कितना, a, दिस इज t। अच्छा, इसके बाद कितना एरिया और एड हुआ है, अभी तक का एरिया ए है, और यहाँ एरिया जो इंपल्स का एरिया है वो कितना है, माइनस ए माइनस ए कितना हो जाएगा, इसी पॉइंट पे वो हो जाएगा 0, उसी पॉइंट पे कितना हो जाएगा वो, उसी पॉइंट पे हो जाएगा 0, है ना। सो दिस इज द स्टोरी, आप बिल्कुल देख सकते हैं कि ये सिग्नल कैसा बनेगा, कोई दिक्कत है इसमें, इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दिस सिग्नल, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, नो, ओके, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एंड लेट्स से आई वांट टू ड्रॉ दिस, है ना, आई हैव दिस सिग्नल्स, इनका आप डिफरेंशिएशन करें, लेट्स से वंस मोर सिग्नल इज दिस, एक सिग्नल बनाता हूं मैं, है ना, एंड सिग्नल लुक्स लाइक दिस, this is 1, this is minus 2, this is 0, this is 1, this is 2, this function is x of t, and you have to draw derivative of this function, we are interested in yt, and yt is given by d by dt of xt, कितना होगा, सो देर आर लॉट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज इन दिस फंक्शन, आप देखेंगे तो एक डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट ये हुआ, तो एक पॉइंट ये हुआ, तो एक पॉइंट ये हुआ, और सारी डिसकंटिन्यूटी पे क्या करना है आपको,
कि जितनी इस डिसकंटिन्यूटी की हाइट है उस हाइट का इंपल्स बना देना है। इस डिसकंटिन्यूटी की हाइट कितनी है, तो आप बोलेंगे h1 द हाइट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज इक्वल टू 1। इस डिसकंटिन्यूटी का हाइट कितना है, तो आप बोलेंगे इस डिसकंटिन्यूटी का हाइट है, फाइनल पॉइंट इज -2, इनिशियल पॉइंट इज 1, सो h2 इज इक्वल टू -3। और इस डिसकंटिन्यूटी का हाइट कितना है, 2 माइनस माइनस 2, 0 माइनस माइनस 2 इज 2, h3 इक्वल टू 2। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू ड्रॉ इंपल्स एट दिस पॉइंट। सो व्हाट आई कैन से, व्हाट वी विल डू फॉर दिस, कि यहां ये बना दिया मैंने, यहां हम yt ड्रॉ कर रहे हैं विच इज डेरिवेटिव ऑफ xt। तो हाउ वी विल प्रोसीड, कि एक बना दूंगा मैं इंपल्स। सो लेट्स से दिस इज इंपल्स, इंपल्स की वैल्यू कितनी है, डेल टी, है ना। फिर यू आर हैविंग impulse of height -3, you can say you are having impulse at t equal to 1 जिसका height कितना हो जाएगा, -3। so ये एक impulse हो गया equal to 1 पे। and what is height of this, the height of this is -3 del of t -1, है ना, 1 पे डिफाइन है। and one more impulse you are having at t equal to 2, so you will go for this and will draw one impulse here। एक इंपल्स आप यहां बना दोगे, और ये इंपल्स कहां बनाई है आपने, t इक्वल टू 2 पे। और ये क्या है, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, है ना। केवल क्या ड्रॉ करना है, डिसकंटिन्यूटी का हाइट ड्रॉ करना है, यू विल गेट द डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। डिसकंटिन्यूटी का हाइट ड्रॉ करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। क्या ये क्लियर है? सर एक बार डायरेक्शन का फिर से बताओ ना, अपवर्ड कभी रहेगा, डाउनवर्ड कभी रहेगा? ओके, इट स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट, है ना। देखो आप ये एरो के डायरेक्शन से आप समझ जाओगे व्हाट आई एम सेइंग। लेट्स से दिस इज द डायरेक्शन। समझा सर। समझ गए? यस सर। ओके फाइन, है ना। हाइट निकालना है आपको डिसकंटिन्यूटी का, दैट्स इट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, लेट्स से draw the differentiation of this function। okay, what is differentiation of this? One function I am taking is, let's say one function which I am taking is this। this is t and this is, let's say, signum of t, and this is +1, this is -1, and I am interested in d by dt of this function। so how will you approach this? What I can say, for calculating d by dt of this function, just see the discontinuity, कि अगर ये function ऐसा है, what should be the discontinuity? तो आप देखेंगे कि constant का differentiation 0 है, but there is a discontinuity at t equal to 0। discontinuity का height कितना हुआ, final point is equivalent to 1, initial point of the function is equivalent to -1। 1 से -1 का हाइट कितना हुआ, दिस हाइट इज 2 यूनिट हाइट। 2 यूनिट हाइट हुआ तो आप क्या करेंगे, यू विल ड्रॉ वन इंपल्स ऑफ यूनिट।
इम्पल्स ड्रॉ कर देंगे कितने यूनिट का, विल ड्रॉ वन इम्पल्स ऑफ 2 यूनिट एट t इक्वल टू 0। तो हमने एक इम्पल्स ड्रॉ कर दिया, लेट्स टेक दिस। हमने क्या किया, एक इम्पल्स ड्रॉ कर दिया which is 2 del of t, है ना। एक इम्पल्स ड्रॉ कर दिया 2 del of t एंड फाइन, है ना। बाकी ये भी डिफरेंशिएशन कितना हुआ, दिस डिफरेंशिएशन इज आल्सो इक्विवेलेंट टू 0। क्या है, क्लियर है? क्लियर हुआ आपको? यस, है ना, कर चुके हैं हम इस तरह की बातें। आगे स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक्स, न्यू क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल, एंड दैट क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल इज नोन एज पीरियोडिक एंड अपीरियोडिक सिग्नल, है ना। हम क्लासिफाई करेंगे सिग्नल को। क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल में क्या क्या आएगा, पीरियोडिक, अपीरियोडिक, इवन, ऑड। सो लेट्स स्टार्ट। Now what we are starting, classification of signals. Now we are starting classification of signals. Classification of signals. So we are going for classification of signals, है ना। क्या क्या क्लासिफिकेशन होंगे? फर्स्ट इज पीरियोडिक, अपीरियोडिक सिग्नल, है ना। पीरियोडिक एंड periodic and aperiodic signals. The second one is even and odd signals. फिर कौन सा आता है, एनर्जी एंड पावर सिग्नल्स। है ना। तो these are the classification of signals. फिर बहुत सारे आते हैं टाइप, तो it's a deterministic and random signals, but these are not that important, है ना। So the next classification में भी, है ना, deterministic and random signals. So we will talk about this type of signals: periodic, aperiodic signal, even and odd signals, energy and power signals, and deterministic and random signals. तो जरा देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ ए सिग्नल, है ना। फर्स्ट पॉइंट इज पीरियोडिक एंड अपीरियोडिक सिग्नल।
periodic and periodic signal, है ना। सबसे पहली बात तो ये, a signal is said to be a periodic signal, है ना, if xt exists in interval of t equal to minus infinity to infinity, है ना। अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक है, वो पूरी टाइम, है ना, शिफ्टिंग से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ टाइम में वो पीरियोडिसिटी दिखा रहा है। जैसे अगर मैंने बोला कि साइन टी, है ना, क्या आप बोलोगे ये फंक्शन पीरियोडिक है? ऑफ कोर्स दिस इज पीरियोडिक। लेकिन अगर मैं ऐसा बोल दूं यस दिस इज पीरियोडिक, हम जानते हैं, लेकिन अगर ऐसा बोल दिया जाए साइन टी इंटू यू टी, मतलब अ साइन टी विच एग्जिस्ट ओनली फॉर टी ग्रेटर देन जीरो, क्या ये पीरियोडिक है? ये पीरियोडिक नहीं है, बिकॉज दिस सिग्नल इज जीरो फॉर माइनस इनफाइनाइट टू जीरो, है ना, इस इंटरवल में जीरो है, दैट्स व्हाई सिग्नल इज नॉट पीरियोडिक। तो पहली बात ये ध्यान रखें। द नेक्स्ट पॉइंट इज the next point is a signal is said to be a periodic signal x of t plus capital T, या इसको लिख दूं मैं सम एम टी इज इक्वलेंट टू एक्स टी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई सिग्नल पीरियोडिक है तो अपने आप को रिपीट करेगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि लेट्स से आई हैव दिस फंक्शन, ये कोई पीरियोडिक फंक्शन है, लेट्स से ये अपने आप को रिपीट करेगा इन ऑल इंटरवल्स, है ना। जैसे मैंने बोला कि दिस विल रिपीट इटसेल्फ आफ्टर दिस अमाउंट ऑफ टाइम, है ना। इस ये अगर इसका टाइम पीरियड है तो टी के बाद रिपीट करेगा, टू टी के बाद भी रिपीट करेगा, माइनस टी के बाद भी रिपीट करेगा, माइनस टू टी के बाद भी रिपीट करेगा, है ना। तो दिस एम मस्ट बी ए इंटीजर वैल्यू, जिसके बाद क्या करेगा, ये फंक्शन अपने आप को रिपीट करेगा। सो दिस इज द एंड। व्हाट वन मोर थिंग, द वैल्यू ऑफ टी, दिस डेफिनेशन इज नॉट वैलिड फॉर टी इक्वल टू जीरो एंड टी इक्वल टू इनफाइनाइट के लिए डेफिनेशन वैलिड नहीं है ना। ऐसा नहीं कि आप एक ये डेफिनेशन लगा दे किस पे, एक डीसी पे, कि डीसी पे वैलिड तो है पॉइंट। सपोज यू आर हैविंग वन डीसी सिग्नल, है ना। अगर आपके पास एक डीसी सिग्नल है, लेट्स से दिस, जैसे आपने बोला कि आई हैव अ सिग्नल ऑफ, लेट्स से दिस इज 2 वोल्ट सिग्नल, मेरे पास कोई 2 वोल्ट सिग्नल है, सपोज आई हैव वन 2 वोल्ट सिग्नल। आप क्या बोलेंगे सर, 2 वोल्ट सिग्नल आपका डेफिनेशन है एक्स ऑफ टी प्लस टी इक्वल टू एक्स टी, लेकिन ये फंक्शन तो ऐसा है कि जो t इक्वल टू जीरो पे ही अपने आप को रिपीट कर रहा है ना। t कौन सा है, वो मिनिमम टाइम इंटरवल जिसके बाद फंक्शन अपने आप को रिपीट करता है, दैट इज नोन एज t। जीरो के बाद रिपीट कर रहा है, तो अगर टाइम पीरियड अगर इसका जीरो हुआ तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। दिस डेफिनेशन इज नॉट ट्रू, है ना। ये t इक्वल टू जीरो वैल्यू नहीं हो सकता, है ना। ये फंक्शन अपने आप को कब इनफाइनाइट, कब रिपीट करेगा, वी कैन से दिस फंक्शन विल रिपीट आफ्टर itself after t equal to infinite. So you can say the frequency of the signal is zero. तो ये आइडिया हुआ
डेफिनेशन को अप्लाई करने का। अच्छा, वो मिनिमम वैल्यू ऑफ टी जिसके बाद फंक्शन अपने आप को रिपीट करता है, दैट इंटरवल इज नोन एज टाइम पीरियड, फंडामेंटल टाइम पीरियड। द मिनिमम वैल्यू ऑफ टी, मिनिमम वैल्यू ऑफ टी, है ना, जिसके बाद फंक्शन रिपीट करता है अपने आप को, इज नोन एज फंडामेंटल टाइम पीरियड, है ना, फंडामेंटल टाइम पीरियड। फंडामेंटल टाइम पीरियड। And the frequency is known as fundamental frequency. So 1 by T naught is equivalent to fundamental frequency. तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं. Now what I can say, the next point is this. ऐसे कौन से फंक्शन है जो सिंगल फ्रीक्वेंसी से पीरियोडिक है ना, सिंगल हार्मोनिक से है ना पीरियोडिक है. सो यू कैन से sin omega naught t and cosine omega naught t and e to the power j ओमेगा नॉट टी, है ना. ये है ना सिंगल हार्मोनिक है, ओमेगा नॉट के साथ ही पीरियोडिक है. जरा देखें कैसे. व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिसिटी? x ऑफ t प्लस t इज इक्वलेंट टू x ऑफ डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिसिटी. चलो साइन के लिए करते हैं. कैन आई से साइन ऑफ ओमेगा नॉट t प्लस t इक्वल टू साइन ओमेगा नॉट टी. अगर कोई साइन अपने आप को टी के बाद रिपीट करेगा, अगर ये दोनों सेम है तो ये फंक्शन क्या होगा? पीरियोडिक विद टी, है ना. द टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? द फंडामेंटल टाइम पीरियड ऑफ दिस फंक्शन मस्ट बी टी नॉट. जरा देखते हैं हाउ इट विल वर्क. सो कैन आई से साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी प्लस ओमेगा टी इक्वल टू साइन ऑफ omega naught t. You know what is omega naught t? You know that omega naught is equivalent to 2 pi by t, है ना. तो ओमेगा नॉट इंटू टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 पाई. सो यू कैन से साइन ऑफ ओमेगा नॉट प्लस 2 पाई इज इक्विवेलेंट टू साइन ओमेगा नॉट टी. इसका मतलब क्या हुआ? और 2 पाई के बाद फंक्शन विल रिपीट इटसेल्फ. सो यू कैन से t इज इक्विवेलेंट टू 2 पाई, है ना. साइन का पीरियड कितना होगा? फंडामेंटल पीरियड फॉर साइन इज 2 पाई. 2 पाई के बाद क्या करेगा? अपने आप को रिपीट करेगा. ठीक है. देखिए जरा, सपोज आई हैव दिस फंक्शन. साइन और कोसाइन दोनों के केस में यही ट्रू है. सो सपोज आई हैव दिस फंक्शन f of t equal to, let's say, sin of 2t. अगर आपको बोला जाए कि व्हाट इज फंडामेंटल पीरियड ऑफ दिस फंक्शन, तो आप कैसे करेंगे? जस्ट कंपेयर दिस विथ साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी. तो आपने क्या देखा? व्हाट इज वैल्यू ऑफ ओमेगा नॉट? जो टी का मल्टीपल है वो रेडियन पर सेकेंड बताता है. ओमेगा नॉट इक्वल टू टी. आपने क्या देखा? 2 पाई बाय टी is equivalent to 2 pi by t naught is equivalent to 2. So what is value of t naught? T naught is equivalent to pi.
इसका जो फंडामेंटल टाइम पीरियड हुआ वो कितना हुआ, पाई. एंड व्हाट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज 1 डिवाइडेड बाय पाई हर्ट्ज. सो दिस इज द आइडिया. ये आप ऐसे भी देख सकते हैं कि दिस इज फंडामेंटल पीरियड इज 2 रेडियन पर सेकेंड. कोई परेशानी नहीं है इसमें. और देखें आगे कि है ना, बेसिक चल रहा है अभी तो. what you can say कि suppose I have one function f of t equal to sin pi t. what is period of this function? तो जो t का मल्टीपल होगा that will be the omega. so I can say omega naught is equivalent to pi. Sin is anyway periodic, so I can say 2 pi by t naught is equivalent to pi. Pi and pi cancel, so you can say t naught is equivalent to 2. तो इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 1/2 hertz. So this is the idea for having periodicity. अच्छा, एक और बात ध्यान रखें. द पॉइंट नंबर 3, किसी भी कांस्टेंट को ऐड करने से पीरियोडिसिटी में कोई चेंज नहीं आता. जैसे मेरे एक पास फंक्शन है साइन ऑफ टी प्लस मैंने कर दिया 2. तो एक बात ध्यान रखें कि साइन कैसा फंक्शन है, साइन फंक्शन है ये. साइन फंक्शन है ये. सो यू कैन से दिस इज साइन. है ना, एक पीरियड के लिए ड्रॉ करता हूं मैं. और अगर इसमें आपने 2 ऐड भी कर दिया तो क्या होगा, ये पूरा फंक्शन शिफ्ट हो जाएगा और कहां बन जाएगा, ये यहां बन जाएगा. तो क्या पीरियोडिसिटी चेंज होगी? नहीं. पीरियोडिसिटी तो इस डिस्टेंस को हम पीरियोडिसिटी बोलते हैं, टाइम एक्सेस की इस डिस्टेंस को. तो अगर मैंने बोला कि ओमेगा 1 का वैल्यू कितना है, 1 रेडियन पर सेकेंड, तो 2 पाई बाई टी नॉट इज इक्वलेंट टू 1. तो टी नॉट का वैल्यू कितना होगा, द वैल्यू ऑफ टी नॉट विल बी 2 पाई. इससे कांस्टेंट ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने से पीरियोडिसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आता. पीरियोडिसिटी केवल किसकी स्केलिंग पे डिपेंड करेगी, इसकी स्केलिंग पे डिपेंड करेगी. सो कीप दिस थिंग इन माइंड. नाउ एक और फंक्शन है मेरे पास, है ना, बड़ा बेसिक है ये तो, सभी को आता है साइन कोसाइन के केस में. ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी, है ना. दिस फंक्शन इज पीरियोडिक और नॉट पीरियोडिक. ध्यान रखें, जे ओमेगा नॉट टी बाय यूजिंग यूलर्स आइडेंटिटी इट कैन बी रिटन एज कोसाइन ऑफ ओमेगा नॉट टी प्लस आयोटा साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी. और दोनों कैसे हैं, पीरियोडिक हैं, तो ये भी कैसा होगा, पीरियोडिक फंक्शन होगा. तो हम लिख सकते हैं इसको भी, वी कैन प्रूव दिस. ई टू द पावर जे, ई टू द पावर जे, है ना. पीरियड कितना होगा इसका देखते हैं. ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी प्लस टी का वैल्यू अगर ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी के बराबर हो जाए तो दिस फंक्शन इज पीरियोडिक विथ टी, है ना. चलो आगे देखते हैं. कैन आई से दिस इज ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी इंटू ई टू द पावर जे ओमेगा टी इक्वल टू ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी. दिस इज कैंसल. तो ये हुआ ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी इज इक्वलेंट टू ई टू द पावर 0. या मैं ऐसा बोलूं कि ई टू द पावर 0 और व्हाट आई कैन से दिस इज इक्वलेंट टू 1. अब इसका एक्सपांशन करते हैं. दिस इज कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी प्लस आयोटा साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी इक्वल टू 1. अब आपको पता है कॉस इवन पाई,
का वैल्यू कितना होता है 1, मतलब cos 2 पाई 4 पाई 6 पाई इज 1। एंड sin n पाई कितना होता है, sin n पाई मतलब sin पाई sin 2 पाई sin 3 पाई sin माइनस पाई सारा कितना होता है 0। तो मैं कितना वैल्यू सिलेक्ट करूं इसका ओमेगा नॉट टी का कि इसका आंसर 1 आ जाए। तो मुझे दो काम करने हैं कि इमेजिनरी पार्ट को बनाना है 0, बिकॉज इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है 0, और इस पार्ट को बनाना है 1। तो कब पॉसिबल है ये, व्हेन ओमेगा नॉट इनटू टी इज इक्वल टू 2 पाई का इवन मल्टीपल। तो लीस्ट मल्टीपल कितना 2 पाई, सो यू कैन से ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। ये भी उसी फ्रीक्वेंसी के साथ क्या होगा, पीरियोडिक होगा, ध्यान रखें इसको। कोई परेशानी, बट बेसिक से कॉन्सेप्ट है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं फिर। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है इसमें, बताएं एक बार। नो, आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स आपके पास ले सामने लिखता हूं, यू जस्ट ट्राई टू फिगर आउट विच वन इज पीरियोडिक विच वन इज नॉट पीरियोडिक, है ना। और पीरियोडिक है तो इसका पीरियड कितना है। एक फंक्शन है मेरे पास ये, द फर्स्ट फंक्शन इज दिस, साइन ऑफ 2t प्लस 5/8। आपको बताना है पीरियोडिक और नॉट पीरियोडिक। सेकेंड है साइन टू द पावर 4 2t। द थर्ड फंक्शन इज the third function is okay, okay, the third function is this sine t into cosine 2t, है ना। what will be the periodicity of this function। फिर फोर्थ फंक्शन है मेरे पास e to the power j n t। देन ये है मेरे पास एक फंक्शन e to the power minus of 2t। then I have next function, okay, these are the function। आप इसकी पीरियोडिसिटी बताओ मुझे ना, what will be the periodicity of these functions।
ओके, तो देखते हैं हाउ इट विल वर्क। सबसे पहले तो देर इज नो इफेक्ट ऑफ टाइम शिफ्टिंग ऑन, या क्या किया है हमने, टाइम शिफ्ट कर दिया है फंक्शन को। तो ध्यान रखें केवल स्केलिंग का इफेक्ट होता है, शिफ्टिंग का इफेक्ट नहीं होता है ना पीरियड पे। तो क्या देखें हम कि व्हाट इज, अगर कोई फंक्शन है मेरे पास साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी, मैं बोलूंगा कि इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना है, फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा नॉट रेडियन पर सेकेंड। इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, ओमेगा नॉट रेडियन पर सेकेंड। और अगर कोई सिग्नल है मेरे पास साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा, तब भी इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, ओमेगा नॉट रेडियन पर सेकेंड। तो ध्यान रखें, so what is frequency of this signal, you can say the frequency of signal is 2 radian per second, so omega naught is equivalent to 2 radian per second. And what will be the time period, omega naught is equivalent to 2 pi by t naught, so value of t naught is equivalent to 2 pi by 2 which is pi। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आप देखें कि आपने किसी साइन या कोसाइन का स्क्वायर किया है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, आप इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर दे। जैसे जैसे क्या, जैसे मैंने बोला कि आई एम इंटरेस्टेड इन कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, तो आप क्या बोलेंगे, दिस इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा। कितना होता है ये कॉस स्क्वायर थीटा, यू कैन से कॉस स्क्वायर थीटा का पीरियड कितना होगा। तो आप जानते हैं कि 2 कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉस 2 थीटा। सो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट, 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। इसका पीरियड कोई मतलब नहीं, कॉस्ट इसका पीरियड कितना हुआ 2। मतलब ये हुआ कि अगर मैंने पावर अगर 2 किया तो ये इसका जो फ्रीक्वेंसी कितने से हुआ, 2 से मल्टीप्लाई हुआ। तो 4 से अगर मैंने पावर किया है तो फ्रीक्वेंसी कितने से मल्टीप्लाई होगा, 4 से। तो आई कैन से द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सिग्नल इज 4 इंटू 2, 8 रेडियन पर सेकेंड। तो इसका टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2 पाई बाय 8। 2 पाई बाय 8 इज इक्वल टू व्हाट, पाई बाय 4 सेकेंड। कोई परेशानी है इसमें। जब भी आप क्या करते हैं, आप ध्यान रखें साइन टू द पावर एन थीटा में जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट रहेगा वो कितना रहेगा, हाईएस्ट एंगल विल बी एन थीटा, है ना। दिस इज द कॉन्सेप्ट, इसको पकड़ लिया। नेक्स्ट है मेरे पास साइन टी इंटू कॉस 2t। अब ध्यान रखिए 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आप केवल ये फ्रीक्वेंसी देखें। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट सिग्नल, ओमेगा 1 इक्वल टू 1। और दूसरा सिग्नल है मेरे पास ओमेगा 2, तो ओमेगा 2 इज इक्वल टू 2। तो आप ध्यान रखें जब भी दो सिग्नल का प्रोडक्ट आता है तो साइन कॉस कोस साइन ऐसा कोई आपको इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब आप जब इसको सॉल्व भी करेंगे तो 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला बनाएंगे तो कॉस ए प्लस बी, है ना, प्लस कॉस ए माइनस बी, ऐसे ही कुछ बनाने वाले हैं। तो ध्यान रखिए फ्रीक्वेंसी एक बार एड होगी तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी नंबर 1 कितनी होगी, ए प्लस बी, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, तो कितना हो जाएगा 3। और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी नंबर 2 कितनी हो जाएगी, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 विच इज इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकेंड। अब दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी आई है तो मैं देख इसको अभी अगले कॉन्सेप्ट में बताता हूं कि इसका कैसे निकालेंगे हम, है ना। वी विल फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस, दैट वी विल डिस्कस। अभी बताते हैं कि इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा इस सिग्नल का। अगेन फोर्थ वाले प्रॉब्लम में ओमेगा का वैल्यू है 10, तो यू कैन से 2 पाई बाय 10 इक्वल टू द टाइम पीरियड। तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा, पाई बाय 5। एंड ई टू द पावर माइनस 2t, यहाँ j नहीं है तो यू कैन से दिस फंक्शन इज नॉट पीरियोडिक फंक्शन। इसमें किसी भी पॉइंट में किसी को दिक्कत है तो पूछ सकता है। इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दिस डिस्कशन, कोई परेशानी। कोई परेशानी नहीं है।
है ना। आगे चलते हैं हम और देखते हैं कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स की, है ना। ये तो नहीं पूछा जाता, कॉज जो पूछा जाता है वो ये है ना। पीरियोडिसिटी व्हेन यू आर हैविंग मोर देन वन सिग्नल, है ना। लेट्स से क्या बोलना चाह रहे हैं हम कि ओके, ft is given by, है ना, द कॉन्सेप्ट इज, है ना, सम और डिफरेंस ऑफ टू सिग्नल, है ना, सम और डिफरेंस ऑफ टू सिग्नल। सपोज एफ ऑफ टी, टू और मोर देन टू सिग्नल्स, सपोज एफ ऑफ टी इज गिवन बाय एफ वन ऑफ टी प्लस एफ टू ऑफ टी प्लस एफ थ्री ऑफ टी, है ना। एफ टी एक सिग्नल है जो इन तीनों सिग्नल का सम है। मैंने बोला कि द फंडामेंटल पीरियड फॉर फर्स्ट सिग्नल इज टी नॉट, या इसको लिख देता हूं मैं टी वन। पहला सिग्नल है तो राइट इट, आई एम राइटिंग इट टी वन। फॉर सेकेंड सिग्नल द फंडामेंटल पीरियड इज टी टू, एंड फॉर थर्ड सिग्नल द फंडामेंटल पीरियड इज टी थ्री, है ना। तो ऑल एफ वन एफ टू एफ थ्री आर पीरियोडिक, है ना। एफ वन टी, एफ टू टी and F3T are periodic. तो क्या Ft भी पीरियोडिक होगा, है ना। द पॉइंट इज, क्या Ft पीरियोडिक होगा, इट डिपेंड्स, है ना। हम रेशियो निकालेंगे T1 बाय T2 का, है ना, T2 बाय T3 का एंड T3 बाय T1 का। अगर ये सारे रेशियो आते हैं रेशनल, मतलब जिसको P बाय Q के फॉर्म में बताया जा सकता हो, जैसे 1.333, 1.5, ये सब कुछ चलेगा। अगर ऐसा आता है तो यू कैन से सिग्नल इज पीरियोडिक, और उसका पीरियड कैसे निकालेंगे, द फंडामेंटल पीरियड इज गिवन बाय, मैं एक एग्जांपल से आप इसको समझाना चाहता हूं, देखो कैसे। फंडामेंटल पीरियड इज गिवन बाय एलसीएम ऑफ T1, T2 एंड T3। अब है ना, ये T1 T2, और अगर ये रेशियो है ना, देन सिग्नल इज पीरियोडिक। अगर ये रेशियो आता है इरेशनल, है ना, इफ दिस रेशियो, ये T1 बाई T2, और ये कोई रूल है क्या, नहीं, मैं इसका भी एक्सप्लेनेशन देता हूं कि कोई रूल नहीं है। लेट्स से दिस इज T1 बाई T2, T2 बाई T3 एंड T3 बाई T1। सपोज दिस रेशियो इज irrational number, then function is not periodic। एक भी ऐसा हुआ जो irrational हुआ तो not periodic। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं हम, है ना। मैंने आपको बोला कि लेट्स से आई हैव दिस फंक्शंस, है ना। आपको ये कोई रेशियो निकालना नहीं है, मैं बताता हूं कि लेट्स से आई हैव वन एफ ऑफ टी इक्वल टू F1T प्लस F2T प्लस F3T। पहला फंक्शन पीरियोडिक है t इक्वल टू 1 सेकेंड के साथ, दूसरा फंक्शन पीरियोडिक है t इक्वल टू 2 सेकेंड के साथ, तीसरा फंक्शन पीरियोडिक है t इक्वल टू 3 सेकेंड के साथ। क्या ये t इक्वल टू, लेट से पहले का पीरियड है t इक्वल टू 2 to 3, अच्छा ऐसा कुछ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ठीक है, T1 बाई T2 का रेशियो निकाला 1 आया, T2 बाई T3 का रेशियो निकाला 2/3 आया,
T1 by T3 का रेशियो निकाला 2/3 आया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो व्हाट आई कैन से, द टाइम पीरियड ऑफ दिस ft इज गिवन बाय LCM ऑफ 2, 2 and 3, and what is LCM of 2, 2 and 3? 6। टाइम पीरियड इसका 6 हो गया है ना। मिलेंगे ना, देखो किसी अगर F1 F2 F3 किसी पार्क के अगर चक्कर काट रहे हैं तो ये 3 चक्कर के बाद, ये 3 चक्कर के बाद और ये 2 चक्कर के बाद मिल जाएंगे। लेकिन सपोज मेरे पास, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 1 है ना, ये T1 T2 का क्या मतलब है उसको देख रहे कि सपोज T1 मेरे पास है 2 और T2 इस बार हो गया है √2 और T3 को रख दिया है मैंने कुछ 3। अब आप देखें √2 कैसा नंबर है, √2 इज 1.414 और ये नेवर एंडिंग नंबर है। तो ये किसी के साथ भी पीरियोडिक हो सकता है क्या? नहीं, इंडिविजुअली पीरियोडिक हो सकता है लेकिन किसी के साथ पीरियोडिक नहीं हो सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि रेशियो निकाल लो, 2/√2, तो √2 आ गया। √2 कैसा? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर तो ये फंक्शन कैसा होगा? दिस फंक्शन इज नॉट पीरियोडिक। मे बी दिस फंक्शन इज इंडिविजुअली पीरियोडिक बट ft इज नॉट पीरियोडिक। अगला क्या, मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट फॉर्मूले से जाने की जरूरत नहीं है। सपोज मैंने ऐसा बोला कि लेट से T1 इज इक्वल टू पाई, T2 इज इक्वल टू 1, T3 इज इक्वल टू 1। मैंने बोला ये पीरियोडिक है या नहीं पीरियोडिक है? तो आप बोलोगे सर कोई परेशानी नहीं है, बस दिस पाई विल क्रिएट ड्रामा, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो फंक्शन कैसा हो जाएगा? नॉट पीरियोडिक, है ना। तो इंडिविजुअली इरेशनल पीरियोडिसिटी हो सकती है, इंडिविजुअली 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 इरेशनलिटी पीरियोडिक हो सकती है, लेकिन टुगेदर नंबर कैसा होना चाहिए? रेशनल नंबर होना चाहिए, तो ही बात बनेगी ना। रेशनल नंबर मतलब ऐसा जिसको जैसे p/q ये चलेगा, 1.3333 रिपीट सेम करेंगे तो चलेगा, लेकिन 22/7 है ना, 3.14 ये जो नंबर रिपीट नहीं होते वो नहीं चलेंगे। तो इस बात का ध्यान रखें, दिस इज द बेसिक। अच्छा, एक और बात कि सपोज ओमेगा T1 T2 T3 दिया है तब ये निकाल लेंगे, लेकिन सपोज आपको ऐसा दिया है कि लेट से आई हैव वन फंक्शन f of t and f of t is given by f1 of t plus f2 of t plus f3 of t, है ना। ओमेगा 1 इसका फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा 2 इसका फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा 3 इसका फ्रीक्वेंसी है। और आपने क्या देखा कि हाँ फंक्शन कैसा है कि किसी में पाए या फिर अंडर रूट ऐसी कोई टर्म नहीं आती किसी के भी पीरियड में, तो टुगेदर द फंक्शन विल बी पीरियोडिक। मतलब ओमेगा 1/ओमेगा 2, ओमेगा 2/ओमेगा 3, ओमेगा 3/ओमेगा 1, कोई भी कैसा है, सारे रेशनल नंबर हैं। तो इसका पीरियड कितना होगा? द फंडामेंटल पीरियड इन रेडियन पर सेकेंड इज गिवन बाय SCF। ध्यान रखें, टाइम पीरियड का करना है LCM और फ्रीक्वेंसी का कितना करना है? SCF। तो ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 का SCF इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगा, है ना। दिस 2 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान रखें, फ्रीक्वेंसी का लेना है आपको SCF और टाइम पीरियड का लेना है आपको LCM। क्या यहां तक बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं? क्या इस पॉइंट तक बात क्लियर है क्या? हाँ या ना बोले, क्या इस पॉइंट तक बात क्लियर है? बहुत अच्छे। ओके, लेट्स ट्राई सम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट, है ना। कुछ प्रॉब्लम ट्राई करते हैं, देखें जरा व्हाट आई एम सेइंग कि आई हैव दिस, मेरे पास कुछ सिग्नल्स हैं। फर्स्ट सिग्नल इज दिस, आप लोग ट्राई करें इसको एक बार, है ना। पहला सिग्नल है मेरे पास, फर्स्ट सिग्नल इज
ft equal to sin 2t plus sin 3 pi t. The second problem is ft equal to sin 2t plus sin 7t. Third one is f of t equal to sin 2 pi t plus t cos of under root of 2 pi t. The fourth signal which we are having is this: ft equal to 2 cos 18 pi t plus sin 12 pi t. Then we are having f of t equal to sin 2 pi by 3 into t cos 4 pi by 3 into t sin 4 pi by इसको 5 कर लो. मतलब हम सारी वैरायटी ट्राई करना चाहते हैं कि इसमें कोई ऐसा ना हो जो छूट जाए. Then we are having f of t equal to cos 60 plus sin 8t plus e to the power j2t. है ना. ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको ट्राई करना है कि अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक है तो इसकी पीरियोडिसिटी लिखो, और अगर नॉट पीरियोडिक है तो मेंशन पीरियड लिखो, नॉट पीरियोडिक है तो मेंशन नॉट पीरियोडिक. एंड f of t equal to e to the power minus j10t plus e to the power j15t. है ना. Write periodicity for all these signals.
ओके, हो जाए तो बता देना आप, मैं स्टार्ट करता हूँ फिर एनालिसिस। करें इसको स्टार्ट सॉल्व। ओके, हो गए सारे? हो गए क्या सारे? हो गए सारे में? यस और नो?
यस, तो करते हैं स्टार्ट वन बाय वन. लेट्स स्टार्ट. तो व्हाट आई कैन से, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, the first question is the first question is sin 2t f of t f1 of t is equivalent to sin 2t plus sin 3 pi t, है ना. What is omega 1? The best strategy is to write omega 1. So omega 1 is 2. What is omega 2? Omega 2 is 3 pi. And we know that omega 1 by omega ratio, ये आप ऐसे ही देख लें कि यहाँ एक पाई आ गया. So what I can say, omega 1 by omega 2 is 2 by 3 pi, which is irrational number. और irrational number है तो फंक्शन इज नॉट पीरियोडिक. तो पहला फंक्शन कैसा होगा? दिस इज नॉट पीरियोडिक. दिस इज नॉट पीरियोडिक फंक्शन. आई होप सभी का करेक्ट होगा. लेट्स गो फॉर द सेकेंड ऑप्शन. द सेकेंड क्वेश्चन इज sin 2t plus sin 7t. ये मेरे पास एक क्वेश्चन है. सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ ओमेगा 1? यू विल से द वैल्यू ऑफ ओमेगा 1 इज 2. व्हाट इज वैल्यू ऑफ ओमेगा 2? द वैल्यू ऑफ ओमेगा 2 इज 7, है ना, रेडियन पर सेकेंड. और 2 by 7 or 7 by 2 is fine. It's a rational number. So you can say the fundamental frequency is SCF of this two number. And what is SCF of 2 and 7? The SCF of 2 and 7 is equivalent to 1. So what is value of omega naught? Omega naught is equivalent to 1 radian per second. So 2 pi by t naught इक्वल टू 1. तो इसका टाइम पीरियड कितना आया? द टी नॉट इज इक्वलेंट टू 2 पाई. एक तरीका तो ये ऐसे सोचा जा सकता है, या दूसरा तरीका क्या हो सकता है? व्हाट वी कैन से, द सेकंड मेथड इज दिस. द t1 टाइम पीरियड, द t1 टाइम पीरियड ऑफ दिस सिग्नल इज इक्वलेंट टू 2 पाई बाय 2, एंड t2 टाइम पीरियड ऑफ दिस सिग्नल इज व्हाट? 2 पाई बाय 7. यही टाइम पीरियड हुआ ना. सो अगेन दोनों में पाई आ रहा है तो कोई परेशानी नहीं है, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा. सो व्हाट आई कैन से, द एलसीएम ऑफ t1 एंड t2 विल गिव्स यू द आंसर. टाइम पीरियड के लिए निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा मुझे? एलसीएम निकालना पड़ेगा. अब ध्यान रखें, व्हाट इज एलसीएम ऑफ p by q एंड x by y. दो नंबर है, इनका एलसीएम कितना होगा? तो ध्यान रखें, इट्स एलसीएम ऑफ p एंड x डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ q एंड y. यही होता है न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का, है ना, न्यूमरेटर का एलसीएम, डिनोमिनेटर का एचसीएफ. और अगर एचसीएफ निकालना होता है तो न्यूमरेटर का एचसीएफ और डिनोमिनेटर का एलसीएम. ओके फाइन. चलो हमारे पास कितना वैल्यू आया? यू कैन से द वैल्यू इज, वी आर इंटरेस्टेड इन एलसीएम ऑफ 2 पाई बाय 2 विच इज कैंसल. कितना आया? पाई एंड 2 पाई बाय 7. तो क्या करना पड़ेगा मुझे? आई एम इंटरेस्टेड इन एलसीएम ऑफ पाई एंड 2 पाई divided by SCF of 1 and 7. तो LCM कितना आया? 2 पाई और 2 पाई का LCM is 2 पाई
और SCF 1 और 7 का कितना 1, तो टाइम पीरियड कितना आया 2 नॉट। तो आप किसी भी तरीके से जा सकते हैं, आपको सारे आंसर आपको करेक्ट मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन गो बाय एनी मेथड। नाउ लेट्स टेक एग्जांपल नंबर 3, है ना, वी आर गोइंग फॉर एग्जांपल नंबर एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या था, साइन 2 पाई टी प्लस 3 कॉस अंडर रूट ऑफ 2 पाई टी। What is period of omega 1 for this signal? Omega 1 is equivalent to 2 pi. What is omega 2? Omega 2 is under root of 2 pi. ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 का रेशियो निकाला आपने, कितना आ गया 2 पाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 पाई, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2। फिर सिग्नल कैसा हुआ, दिस सिग्नल इज नॉट पीरियोडिक, है ना। एक में भी इरेशनल आ जाए और एक में नहीं आया तो समझ जाओ नॉट पीरियोडिक। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 था 2 cos 18 पाई टी प्लस साइन 12 पाई टी। अच्छा, एम्पलीट्यूड चेंज होने से भी पीरियोडिसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, इस बात का ध्यान रखें, है ना। सो व्हाट आई कैन से, व्हाट इज ओमेगा 1 फॉर द सिग्नल, यू कैन से ओमेगा 1 फॉर द सिग्नल इज 18 पाई। व्हाट इज ओमेगा 2 फॉर द सिग्नल, 12 पाई। पाई आ रहा है लेकिन दोनों में आ रहा है तो कैंसिल हो जाएगा। सो यू कैन से द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सिग्नल इज SCF ऑफ, ध्यान रखें फ्रीक्वेंसी जब भी निकालना आएगा यू हैव टू गो बाय SCF, 18 पाई एंड 12 पाई। 18 पाई और 12 पाई कितना कॉमन है, 6 पाई। सो व्हाट इज SCF ऑफ दिस, 6 पाई। और 2 पाई बाय टी नॉट का वैल्यू आया है मेरे पास 6 पाई। सो आई कैन से व्हाट इज पीरियड ऑफ दिस सिग्नल, पीरियड इज इक्विवेलेंट टू 1/3, है ना, बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। या दूसरा तरीका कि व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट सिग्नल, आप वैसे तो निकाल ही सकते हैं, जनरलाइज मेथड है वो तो, T1 इज इक्विवेलेंट टू 2 पाई बाय 18, T2 is equivalent to 2 pi by 12, तो ये कितना आया, T1 is equivalent to 2 pi by 18 pi और 2 pi by 12 pi। T का मल्टीपल होता है और फ्रीक्वेंसी होता है, तो T1 is equivalent to 1/9 and what is T2 equal to, T2 is equivalent to 1/6। निकाल लें इसका LCM of T1 and T2। So what I can say, we are interested in LCM of 1/9 and 1/6। तो ऊपर वाले का आ जाएगा LCM विच इज 1 1 का 1 और नीचे वाले का SCF कितना, 9 और 6 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3। सो व्हाट यू कैन से, द फंडामेंटल टाइम पीरियड इज इक्विवेलेंट टू 1/3। यू कैन गो बाय एनी मेथड, बड़ा ही आसान है तो। अगला जो क्वेश्चन है मेरे पास, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, a signal sine of 2 pi by 3 into t multiplied by cosine of 4 pi by 5 into t। What is the period of this function, और ये पीरियोडिक है या नहीं है। अब एक बात ध्यान रखें कि अगर कोई मेरे पास सिग्नल है साइन ऑफ ओमेगा 1t या साइन और कोसाइन ऑफ ओमेगा 2t, है ना, कुछ भी हो सकता है, मुझे इसका बाहर ऑपरेटर साइन लगता है या कॉस लगता है उससे कोई मतलब नहीं, मुझे ये पता है कि एक बार फ्रीक्वेंसी मिलेगी मुझे ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 और एक बार फ्रीक्वेंसी मिलेगी मुझे ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, और पॉजिटिव नेगेटिव साइन से भी कोई मतलब नहीं। तो आप जब भी ऐसा सिग्नल देखें आप कैसे करेंगे इसको कि द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट
है ना, और ये मल्टीप्लीकेशन किस में चेंज हो जाएगा, एडिशन में। तो फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट व्हाट आई कैन से 2π/3 प्लस 4π/5, और सेकेंड कितना मिलेगा, 2π/3 माइनस 4π/5। हमें कोई मतलब नहीं कि 2 sin A cos B का फॉर्मूला क्या बनता है। सो यू कैन से ω01 इज इक्वल टू, ये कितना हुआ 5 + 3, यहां से कितना कॉमन ले लें 2π, 10π प्लस 12π 22π/15, और ω02 कितना बनेगा 10π माइनस 12π, 10 माइनस 12 इज 2π, है ना। साइन तो लगाना ही नहीं पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि साइन बाहर आ जाता है तो वो n/15। और आपने देखा कि ω1/ω2 का मैं रेशियो निकालता हूं तो वो रेशियो का वैल्यू कितना आता है, व्हाट यू कैन से ω01 divided by ω02 is 22π divided by 15 into 15 divided by 2π। कोई प्रॉब्लम नहीं है, 11, है ना, रेशनल नंबर। सो व्हाट आई कैन से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट SCF of 22π divided by 15 and 2π डिवाइडेड बाय 15। तो आप देखें न्यूमरेटर का निकालें SCF, तो न्यूमरेटर का SCF कितना आ जाएगा 22π, और 2π में से कितना कॉमन है 22, 2π, और 15 का एलसीएम कितना 15। सो व्हाट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर दिस, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर दिस सिग्नल इज, fundamental frequency is equivalent to 2π/T0 is equivalent to 2π/15। तो you can say the T0 is equivalent to 15। यहां से भी निकाल सकते हैं, और कहां से निकाल सकते हैं, और निकाल सकते हैं आप T1 T2 से भी निकाल सकते हैं, उससे भी कोई परेशानी नहीं। उससे भी देखना चाहते हो क्या, T1 T2 से भी किया जाए, हाँ या ना बताएं भाई जल्दी। T1 T2 से किया जाए कि कोई जरूरत नहीं है, बताएं जल्दी। यस, ओके। तो यहां तक की स्टेप्स तो कॉमन है, कहां तक का, यहां तक का स्टेप्स तो कॉमन है, ये ω01 और ω02 निकालने में तो कोई परेशानी नहीं है। बताओ T01 कितना आ जाएगा, T01 विल बी 2π डिवाइडेड बाय 22π डिवाइडेड बाय 15। तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज 2π बाय 22π इंटू 15, तो ये हो जाएगा 15/11। दिस इज द वैल्यू ऑफ T1। और T02 का वैल्यू कितना हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ T02 विल बी, the value of T02 will be 2π divided by 2π/15। कितना आ जाएगा ये, this will be 1 by okay, this will be 15, है ना। तो अब क्या निकालना है हमको, वी आर इंटरेस्टेड इन LCM ऑफ T01 and T02। This will be the fundamental time period,
T naught. So what I can say, the LCM of 15 by 11 and 15. तो न्यूमरेटर का एलसीएम कितना आया 15 और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो 1 और 11 में से क्या कॉमन है? इट्स 1. So what is value of T naught? It's a 15. 15 is correct answer. क्लियर है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं? आकाश मिश्रा। Yes, clear. Fine. Let's move to the next problem. अगला प्रॉब्लम क्या था? The next problem is this. F of t, we are having f of t, and f of t is given by cos 60 plus f of t is given by cos 60 plus sin 80 plus e to the power j 2t. Just to go by the omega. What is omega 1? Omega 1 is equivalent to 6. What is omega 2? Omega 2 is equivalent to 8. What is omega 3? Omega 3 is equivalent to 2. There is no number in omega 1, omega 2 and omega 3 which cause irrationality. So I can say omega naught is given by SCF of highest common factor of 6, 8 and 2. और 6, 8 and 2 का highest common factor कितना आया? 2. So you can say the frequency is 2 radian per second. So you can say T naught, which is 2 pi by omega naught, which is 2 pi by 2. तो कितना आया? टाइम पीरियड इज पाई. तो बड़ा ही आसान है और इसको भी टाइम से भी कर सकते हैं. You can go by time also. What is the time period for first signal? I can say T1 is equivalent to 2 pi by 6. T2 is equivalent to 2 pi by 8. T3 is equivalent to 2 pi by 2. तो T1 का वैल्यू हो जाएगा कितना? पाई बाय 3. T2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? पाई बाय 4. और T3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? पाई. तो we are interested in LCM of T1, T2, T3. So what I can say, LCM of pi by 3, pi by 4 and pi. तो न्यूमरेटर का LCM तो पाई 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 का LCM पाई और डिनोमिनेटर का SCF. So 3, 4, 1 का LCM कितना? SCF कितना? 1. So I can say the time period of the signal is equivalent to pi. तो किसी भी तरीके से कर लो आप, आंसर आ जाएगा. और ओमेगा नॉट का वैल्यू निकालना है तो 2 pi by pi, which is 2 radian per second. So I think this is also clear. Now the next question is this. We are interested in f of t equivalent to e to the power minus e to the power minus j 10t plus e to the power iota 15t. So I can say omega 1 for this signal is 10, omega 2 for the signal is 15. No number will cause irrationality in the function. So what is omega naught? Omega naught is nothing but SCF of 10 and 15. 2 और 15 का SCF कितना आया? 5. तो आंसर is what? 5 radian per second. And what is time period of this signal? It is 2 pi by 5. टाइम से भी निकाल सकते हैं. What is T1? You can say T1 is equivalent to
2 pi by 10. 2 pi by 10. What is T2? T2 is equivalent to 2 pi by 15. So we can say the LCM of T1 and T2 will be the fundamental time period. The LCM of T1 and T2, which is T naught, तो ये हो जाएगा pi by 5 and 2 pi by 15. सो न्यूमरेटर का एलसीएम लिया तो आपने पाई और 2 पाई का एलसीएम आया 2 पाई एंड डिनोमिनेटर का एचसीएफ लिया तो इट्स 5. तो किसी भी तरीके से आप आंसर निकालें, इट्स वेरी इजी टू डील विद पीरियोडिसिटी. तो आपसे पिछले 1-2 सालों में क्वेश्चन पूछे हैं पीरियोडिसिटी के, वो सारे क्वेश्चन बन जाना चाहिए. क्या ये बात आपको समझ में आई है ना? एक और क्वेश्चन है मेरे पास. लेट से एक एग्जांपल और है जो प्रीवियस ईयर का एग्जांपल है, देखें जरा. What I can say, I have this function. ये 2 मार्क में क्वेश्चन पूछा है, अब इसको करके बताओ जरा. 3 cos 17 pi t, 3 cos 17 pi t plus pi by 3 minus 6 sin 19 pi t minus pi by 6. What is the fundamental time period of this signal? नॉट का वैल्यू बताना है अगर पीरियोडिक है तो. The things are very simple. What you can say, the value of omega 1 is equivalent to 17 pi. The value of omega 2 is equivalent to 19 pi. SCF is equivalent to pi. So fundamental frequency is what? Pi for this signal. बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं ना, आपको कोई बहुत एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत नहीं. क्या ये क्लियर है? पाई और पाई. अच्छा, टाइम पीरियड पूछा है तो ठीक है. ओके, ठीक 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 ठीक, कोई परेशानी नहीं. नेक्स्ट टाइप ऑफ सिग्नल पे चला जाए क्या? नेक्स्ट इज एनर्जी एंड पावर, इवन एंड ऑड सिग्नल्स. आगे बढ़ा जाए इस पॉइंट से. मुझे लगता है सारे बन जाएंगे क्वेश्चन. अच्छा, एक क्वेश्चन और ट्राई करें जरा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं. वन मोर क्वेश्चन इज दिस. लेट्स से xt is summation of x1t plus x2 3t, है ना? इसका समेशन है xt, where x1t is given by x1t is given by
sin pi t by 6 and x2t is given by sin x2t is given by sin pi t by 9। तो आपको बताना है व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस सिग्नल xt। xt का टाइम पीरियड कितना होगा, करें जरा इसको। Okay, so what I can say, sin pi t by 6 and sin pi t by 9. So I can say x of t can be written as sin pi t by 6 and sin of 3t। तो 3t को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, sin of 3। So pi t by 3। What is value of omega 1? Omega 1 is equivalent to pi by 6। What is value of omega 2? Omega 2 value is pi by 3। ऊपर एचसीएफ लिया आपने, कितना आया पाई, नीचे एलसीएम लिया, कितना आया 6। तो आंसर इज टी नॉट इक्वल टू पाई बाय 6। ओमेगा नॉट इक्वल टू टी नॉट नहीं, ओमेगा नॉट इक्वल टू पाई बाय 6। क्लियर है? भाई किसी सिग्नल को आपने स्केल किया है, स्केल किया है तो क्या होगा, उसका पीरियड कम होगा या ज्यादा होगा, है ना? डोंट डू दैट। अच्छा ठीक है, इट्स मुझे लगता है इसमें लोगों को कंफ्यूजन है। यस, अब करेक्ट है। आपने x ऑफ t को x ऑफ 3t कर दिया, तो 36 क्यों कर रहे हो, उसको मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो, दैट है ना, उसका पीरियड कम हो जाएगा, श्रिंक हो गया सिग्नल। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ सिग्नल्स आर इवन एंड ऑड सिग्नल्स। अच्छा क्या? ओके ओके, नेक्स्ट इज इवन एंड ऑड सिग्नल्स। even and odd signals। even and odd, even and odd signals। So a signal is said to be even signal, or a function is said to be a even function if f of minus t is equivalent to ft, है ना? This is the definition। And what is odd signal? Odd component is f of minus t equal to minus times of ft, है ना? These signals are known as
इवन एंड ऑड सिग्नल का ये डेफिनेशन है। अब जरा देखते हैं आगे कि सपोज हाउ वी कैन से सम सिग्नल इज इवन और ऑड। तो सपोज आई हैव दिस सिग्नल, एक सिग्नल है मेरे पास ऐसा, एक ऐसा कोई सिग्नल है मेरे पास। लेट्स से this is 0, this is t by 2, this is t, this is minus t by 2, this is minus t। ये कोई सिग्नल है मेरे पास x of t। लेट्स ड्रॉ x of minus t। x of minus t कैसा बनेगा जरा देखते हैं। x ऑफ माइनस टी बनाना है, टाइम रिवर्सल करना है, तो जो पॉजिटिव डायरेक्शन में बना है उसको नेगेटिव में बना देंगे, जो नेगेटिव में बना है उसको पॉजिटिव में बना देंगे। सो कितना हो जाएगा, दिस विल बी ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, टी को माइनस टी कर दिया है, और ये पार्ट इधर आ जाएगा। यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कितना हो गया, एक्स ऑफ माइनस टी। अब इस एक्स ऑफ माइनस टी में मैं लगा देता हूं लेट से माइनस टाइम्स ऑफ एक्स ऑफ माइनस टी कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा कि जो नेगेटिव पार्ट है वो पॉजिटिव में चला जाएगा, जो पॉजिटिव पार्ट है नेगेटिव में आ जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस लगाया, एम्पलीट्यूड रिवर्सल हो गया। ये पॉजिटिव पार्ट है, ये चला जाएगा नेगेटिव में, ऐसा कुछ। क्या ये दोनों सिग्नल सेम है? यस। मतलब क्या बोला मैंने, x ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ एक्स टी, ये दोनों बराबर हैं। और अगर ये दोनों बराबर है तो मैं क्या बोल सकता हूं, दिस सिग्नल इज ए ऑड सिग्नल। कौन सा सिग्नल हुआ, ऑड सिग्नल। तो आप समझें कि किस टाइप के सिग्नल ऑड सिग्नल होंगे। सो यू कैन से दिस सिग्नल्स आर नोन एज ऑड सिग्नल्स, है ना, जिसमें फंक्शन किसके अक्रॉस सिमेट्रिक हो, ओरिजिन के अक्रॉस सिमेट्रिक हो। ऐसा सिग्नल जो किसके अक्रॉस सिमेट्रिक हो, ओरिजिन के अक्रॉस सिमेट्रिक हो, दिस सिग्नल्स आर नोन एज ऑड सिग्नल्स। ऐसा फंक्शन जो ओरिजिन के अक्रॉस सिमेट्रिक हो, इस सिग्नल को बोलेंगे हम ऑड सिग्नल। जरा देखें आगे कि लेट्स से आई हैव वन मोर फंक्शन व्हिच इज दिस। कौन सा सिग्नल है, दिस इज ऑड सिग्नल। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन कैसा है, दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। तो सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन इज नोन एज ऑड फंक्शन। और कौन सा फंक्शन ऑड फंक्शन है, यू कैन से दिस। This function is also definite is also odd function. Let's say I have signum. ये and one more I am having this। ये फंक्शन भी कैसा है, दिस फंक्शन इज ऑल्सो सिमेट्रिकल अबाउट दिस लाइन। और जो भी फंक्शन ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा वो कौन सा होगा, ऑड। तो आप ध्यान रखें, सिग्नम ऑफ माइनस टी इज इक्वलेंट टू व्हाट, माइनस टाइम्स ऑफ signum t। So when a function is symmetrical about origin, it's known as
ऑड फंक्शन है ना, उसको क्या बोलेंगे हम, ऑड फंक्शन बोलेंगे। देन व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इवन फंक्शन, उसको भी देख लेते हैं, है ना। अभी देखेंगे कि इनका इवन और ऑड पार्ट कितना होता है, फंक्शन इवन बाय इवन, ऑड बाय ऑड, एडिशन में क्या इफेक्ट आता है, वो सारा कुछ देखेंगे, बट अभी बेसिक समझे। सो नेक्स्ट इज व्हाट, इवन फंक्शन। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इवन फंक्शन, that x of या f of minus t is equivalent to xt is a definition of even function. Let's say I have one, एक सिग्नल है मेरे पास और मैंने उसको ऐसा कुछ बना दिया है। Let's say I am starting from this point. This is let's say cos t, है ना, आगे भी फंक्शन है, यहाँ भी फंक्शन है। This is 1, this is -1. So can I draw cos of minus t? Let's draw cos of minus t. I am drawing cos of minus t. और cos of minus t किया तो क्या हुआ, ये फंक्शन फ्लिप हो जाएगा। ध्यान रखें एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा इसका, जो 1 जैसे सपोज ये था t/2, तो ये t/2 यहां मिलने लग जाएगा, ये -t/2 ये पॉजिटिव साइड में फ्लिप हो जाएगा। तो कोई फर्क पड़ता है क्या इससे? नो, द फंक्शन विल रिमेन एज इट इज। So what I can say, cos of t is equivalent to cos of minus t. That's why this function is what, even function. So any function which is symmetrical about vertical axis is known as even function, है ना। कोई भी फंक्शन ऐसा जो वर्टिकल एक्सिस के अक्रॉस सिमेट्रिक होगा, वो कौन सा फंक्शन होगा? दिस इज द साइन ऑफ इवन फंक्शन। जैसे जैसे ये सारे फंक्शन, लेट्स सी कि सपोज आई हैव दिस, कौन सा फंक्शन है? इवन फंक्शन, बिकॉज इट इज सिमेट्रिकल अबाउट वर्टिकल एक्सिस। बेल शेप कर्व कौन सा फंक्शन है? इवन फंक्शन है, सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, सिमेट्रिकल अबाउट वर्टिकल एक्सिस। और कौन सा फंक्शन? even function. Why? Because this is symmetrical about vertical axis. So this is the idea of even and odd function. In even and odd function का आइडिया ये होता है। तो कल हम देखेंगे कि हाउ टू फाइंड इवन एंड ऑड पार्ट ऑफ ए सिग्नल, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज एनर्जी एंड पावर सिग्नल। आरएमएस पावर की भी बात करेंगे और बात करेंगे ऑर्थोगोनलिटी की। अच्छा, कल एक टाइमिंग का इशू है, 9:30 to 12:30 मेरा क्लास है, तो उसके बाद कोई टाइमिंग रख सकते हैं या कल का ऑफ रखना है, आप बता दें मुझे। सर इवनिंग में, सॉरी, इवनिंग में पॉसिबल रहेगा तो चलेगा सर। कितनी बजे? सर मुझे तो कभी भी चलेगा, बाकी अच्छा लोग अच्छा, बता बाकी दें। लोग बोल रहे हैं संडे ऑफ प्लीज। चलो ठीक है, ओके, वी विल रिज्यूम आवर क्लास। ठीक है, हम एक काम करते हैं, मंडे टू सैटरडे रखते हैं क्लास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मंडे टू सैटरडे द क्लास टाइमिंग इज 9 to 11, ठीक है? यस सर। ओके, कल क्लास नहीं है फिर, ओके सर। है ना, सर मंडे 9। हाँ ओके, थैंक यू। हेलो सर, हाँ जी। अगर बेल शेप कर्व रहेगा तो, हाँ। और इसका मुझे डिफरेंशिएशन निकालना है, तो मतलब पहला स्लोप इंक्रीजिंग है, बाद में स्लोप डिक्रीजिंग है, तो कैसा मतलब ड्रॉ करेंगे अगर ड्रॉ करना रहा तो? बेल शेप कर्व का हाँ क्या प्रॉब्लम है? डिक्रीजिंग है तो नेगेटिव में ड्रॉ कर दो ना उसको।
मतलब वो ट्रायंगल ही मिलेगा ना फिर भी? हाँ, ट्रायंगल नहीं मिलेगा, मतलब व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ? देखो शेप के बारे में तो है ना, गो टू द मैटलैब, दे विल गिव यू एग्जैक्ट शेप। मैं आपको बता अच्छा दूं अच्छा। कि द शेप विल बी दिस। व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ d by dt? What is bell shape curve? E to the power minus of x square kind of function, correct? यस सर। And if this is e to the power minus x square kind of function, it is minus 2x into e to the power इंटू ई minus of टू द x पावर square. एक्स स्क्वायर, यस So सर। this is some combination of this smooth curve and line, है ना? तो वो आपको वो करेक्ट दे देगा, बट हाँ, वी कैन ड्रॉ द स्लोप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, वेलकम।